Good evening, everyone. Welcome to Rajlakshmi Solutions Private Limited webinar. Let's wait for 5 more minutes. Exact 4 5 we'll start the session. Good evening, everyone. Thank you for joining us the weekly webinar and training session hosted by Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of the entire Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees present here. I am Priyanka representing Rajlakshmi Solutions Private Limited, and today we will discuss the master classification and inventory storage in Teleprime. Before diving into the topic, let's take a brief look what Rajlakshmi Solutions Private Limited is all about. About Rajlakshmi Solutions Private Limited, we specialize in software, sales, services, solution, implementation, and development. Our product we offering includes Teleprime, SAP Business One, Bittrex 24 CRM, and ERP Wave. So, speakers are here. Mrs. Aarti is now available. She will be conducting live demonstration, and Tejashri will be present the PPT. So, over to you, Tejashri. Okay, ma'am. My screen is visible? Yes, Tejashri. Okay, thank you, ma'am. Hello everyone, myself Tejashri and I am here to present webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. So today we will discuss on the topic which is master classification and inventory storage in Tally Prime. Let's begin with the first slide. Introduction. Tally Prime supports tracking inventory in your business from purchase order to sales. Stock tracking can be across godowns or locations or different stages of processing. टैली प्राइम में आप परचेस ऑर्डर से लेके सेल्स तक इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो. इनकेस अलग अलग गोडाउन और अलग लोकेशंस रहे तो भी आप टैली प्राइम में इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो. वो कैसे होगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री ट्रैकिंग. इन्वेंट्री ट्रैकिंग कवर्स स्टॉक चेंजेस ड्यू टू परचेस एंड सेल प्रोसेसेस, डिलीवरी or receipt as samples, movement across godowns, all adjustment entries including those caused by physical verification and so on. You can also use batch details for items if applicable. You can do item cost tracking and costing for job or projects if needed. Various reports are available to help you track all your inventory transactions. सो इन्वेंट्री ट्रैकिंग में आप सेल्स और परचेस की वजह से होने वाले सारे स्टॉक चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो. जो भी स्टॉक मूवमेंट होती है गोडाउन्स के थ्रू वो भी आप ट्रैक कर सकते हो और फिजिकल वेरिफिकेशन की वजह से जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होती है उसका भी स्टॉक ट्रैकिंग आपको टैली में मिल जाएगा. आप बैच वाइज डिटेल्स भी टैली में मेंटेन कर सकते हो. अगर चाहिए तो आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग और कॉस्टिंग, जॉब प्रोजेक्ट्स का कॉस्टिंग ट्रैकिंग जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लगता है वो भी आप टैली में मेंटेन कर सकते हो. और अलग अलग रिपोर्ट्स आपको टैली में अवेलेबल मिलेंगे जिससे आप इजीली इन्वेंट्री ट्रैक कर सकते हो और इजीली वो रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्टॉक मैनेजमेंट. Stock management options in Teleprime provides the flexibility to define your stock items, groups them if needed, and record the transaction as per your needs. Stock item details that you can store in Teleprime includes the name of the items to the different units of measurements used in transactions, taxability of items, and prices. तो स्टॉक मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको टैली प्राइम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप स्टॉक आइटम्स, ग्रुप, ट्रांजैक्शन में इजीली यूज कर सकते हो. उसके साथ टैली प्राइम में आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टैक्सेबिलिटी और स्टॉक नेम और प्राइस ये भी इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री रिपोर्ट. इन्वेंट्री रिपोर्ट इज एन important component in supply chain management. You can use this report to forecast inventory and know the demand of stock items in the market. It helps in understanding and meeting the dynamic demands of the customers. इन्वेंट्री रिपोर्ट ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आप मार्केट के हिसाब से स्टॉक की डिमांड कितनी होगी ये रिपोर्ट थ्रू देख सकते हो और जान भी सकते हो. इससे कस्टमर की डिमांड को समझने में बहुत सारी हेल्प हो जाती है. These are few reports in Teleprime which you can use in inventory management. That is stock summary, location godown summary, movement analysis,
stock estimation, physical stock register, stock query, and stock aging analysis. So that's it from my side. Over to you, Aarti, for live demo. Thank you. Thank you, Tejashri. Hello, everyone. Myself, Aarti Narode. I am here to represent the live demo session on behalf of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So, आज का टॉपिक है हेलो मैम, आवाज आ रही है? Yes, Aarti. हाँ, सो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इन्वेंट्री स्टोरेज इन टैली प्राइम. तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, Aarti, it's visible. थैंक यू. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं. तो मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ. हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है. स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम पे जैसे मैंने यहाँ पे ओप्पो का मोबाइल का जो स्टॉक आइटम है वो मैंने यहाँ पे लिया है. तो हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम का अंडर अंडर डालना है, जैसे कि अंडर ग्रुप डालना है. तो मैंने यहाँ पे ओप्पो डाला है. हम यहाँ पे उसका ब्रांड भी डाल सकते हैं या कंपनी का नेम भी डाल सकते हैं. जैसे मैंने ओप्पो का मोबाइल लिया तो मैंने यहाँ पे अंडर में ओप्पो डाल दिया. यहाँ पे हमें जो स्टॉक आइटम हमने लिया है उसकी कैटेगरी डालनी है. सेकेंड, हमें यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन यस करना है. इसके थ्रू हम हमारी बैचेस के थ्रू हम स्टॉक आइटम को मेंटेन कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखे हुए हैं. सेकेंड, हम क्रिएट करेंगे गोडाउन. तो मैं यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करती हूँ. मेन लोकेशन हमारा ऑलरेडी क्रिएट रहता है गोडाउन. तो मैं और एक क्रिएट कर लेती हूँ वालूज का. यहाँ पे हमें अलो स्टोरेज इन मटेरियल्स का ऑप्शन यस करना है. ये मैंने स्टॉक आइटम और गोडाउन क्रिएट कर लिए. तो हमें अगर स्टॉक आइटम की समरी देखनी है तो वो कहाँ से देखेंगे. तो हमें यहाँ पे टैली में ऑप्शन दिया है स्टॉक समरी का. गेटवे ऑफ टैली से हम स्टॉक समरी का रिपोर्ट देख सकते हैं. यहाँ पे हमें ग्रुप वाइज समरी दिखाता है. अगर हमें यहाँ पे ग्रुप वाइज समरी दिखा रहा है, अगर हमें स्टॉक आइटम वाइज समरी देखनी है तो हम यहाँ पे Alt F1 करेंगे तो हमें स्टॉक आइटम वाइज हमारे पास कितनी क्वांटिटी है हम यहाँ से देख सकते हैं. सेकेंड है गोडाउन ट्रांसफर. तो हम एक गोडाउन से हमें दूसरे गोडाउन में अगर स्टॉक ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम स्टॉक जनरल की एंट्री के थ्रू भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं. तो मुझे मेन लोकेशन से वाड़ूज के लोकेशन में कुछ स्टॉक ट्रांसफर करने हैं. तो डेस्टिनेशन गोडाउन में हमें जो गोडाउन में ट्रांसफर करना है वो गोडाउन यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है. तो मैंने यहाँ पे वालूज का गोडाउन सेलेक्ट किया है. तो मैंने यहाँ पे ओप्पो रेनो का मोबाइल लिया है, वो है मेरा मेन लोकेशन में. तो मैंने यहाँ पे बैचेस बनाई थी. तो वो बैचेस हम यहाँ पे अलग अलग बैचेस का अलग अलग हम क्वांटिटी लेते हैं. तो मैंने 51 बैच नंबर की एक क्वांटिटी ली है और 78 नंबर बैचेस की मैंने एक क्वांटिटी ली. तो ऐसे मैंने ओप्पो के मोबाइल के 2 क्वांटिटी यहाँ पे ली है. तो सेम मैंने इसे और एक लिया प्रोडक्ट और यहाँ पे मेन लोकेशन में है तो मैंने बैच सेलेक्ट करके वो यहाँ पे ट्रांसफर कर रही हूँ. तो सेकेंड मैंने सैमसंग का लिया, वो भी मेरा मेन लोकेशन में है. तो मैंने बैचेस के थ्रू अलग अलग बैचेस के अलग अलग मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट की है. जैसे मैंने यहाँ पे पांच क्वांटिटी मुझे शेयर करनी है तो मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग बैचेस सेलेक्ट किया है. ये मैंने यहाँ पे किया. ये हमारी गोडाउन ट्रांसफर की एंट्री हो गई. अगर हमें गोडाउन ट्रांसफर तो मैंने कर लिया, बट कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक हमारे पास है वो देखना है. तो वो रिपोर्ट हम कहाँ से देखेंगे. तो हमें उसके लिए जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री बुक में जाना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है गोडाउन्स. तो गोडाउन में जाएंगे तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर गोडाउन सेलेक्ट करना है. जैसे मैंने यहाँ पे मेन लोकेशन में देखती हूँ तो मेरे पास मेन लोकेशन में ओप्पो की 7 क्वांटिटी है और सैमसंग की 15 क्वांटिटी है. अगर मुझे स्टॉक आइटम वाइज कितनी क्वांटिटी वो देखना है तो मैं यहाँ पे Alt F1 करूंगी तो मुझे स्टॉक आइटम वाइज यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही है. ये सेम रिपोर्ट हम गोटू में जाके देख सकते हैं. सिर्फ हमें यहाँ पे गोटू में
सर्च करना है, जो भी रिपोर्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ से गो टू से सर्च करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गो डाउन सर्च किया तो गो डाउन समरी ओपन हो गई। तो मैं सेकेंड हमारा जो गो डाउन है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका रिपोर्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम डिटेल में देखना है तो अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे डिटेल में शो हो रहा है। सेकेंड है मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस में हम हमारा जो स्टॉक आइटम है तो उसकी हम टोटल मूवमेंट देख सकते हैं स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस से। तो उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ से हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और मूवमेंट एनालिसिस। यहाँ पे हम मूवमेंट एनालिसिस ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं और आइटम वाइज भी देख सकते हैं। ये तो ग्रुप वाइज देखनी है तो ग्रुप सेलेक्ट करना है, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं और स्टॉक आइटम वाइज भी। तो मैंने स्टॉक आइटम वाइज देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम को हमने किससे परचेस किया है, किसको सेल किया है, वो हम पूरा यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं मूवमेंट एनालिसिस में। सेकेंड है स्टॉक क्यूरी। स्टॉक क्यूरी के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और स्टॉक क्यूरी। स्टॉक क्यूरी में हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें रिपोर्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमें परचेस, सेल, गो डाउन, बैचेस और सेम कैटेगरी के स्टॉक आइटम कितने हैं हमारे पास, वो सारा रिपोर्ट हमें यहाँ पे शो होता है स्टॉक क्यूरी में। और ये जितने भी हमने रिपोर्ट देखे हम ये गो टू के थ्रू देख सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे सर्च करना है, जो भी रिपोर्ट चाहिए वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे वो शो हो जाएगा। जैसे मैं अभी स्टॉक समरी का सर्च करती हूँ, स्टॉक समरी का हमने रिपोर्ट देखा था प्रोसेस वाइज, तो अभी हम गो टू के थ्रू देखते हैं तो हमें वो रिपोर्ट भी यहाँ से मिलता है। थैंक यू। Thank you, Aarti and Tejasvi, for knowledge sharing session. Soon this session will be uploaded to the YouTube channel. So please stay connected with our social media. Thank you, everyone. Have a great evening.